students, how are you? I hope all of you are fine and you are learning whatever work we are giving you. And today, in previous video, yesterday, day before yesterday, I have given you the let's try 1 and let's try 2 to fill in your textbook. Those who are not having the textbooks, they have to write this work in their friend notebook. Yes. Now, I hope you have done the whole work and you have learned everything. Today, we are going to learn let's try 3. Okay, what we are going to learn? Let's try 3. Okay, now see on the board, I have written the question and answer both. So what you have to do, I am going to read the question and I will explain you the answer. Both the things I am going to do. So listen to the explanation and question and answers properly. You have to read this question and answers and write in your fair notebook with a fair, neat handwriting. Okay, so let's start. The first question, what is the first question? The first question is, what does the sentence, the wealth of information now available at the click of a finger amazes me mean? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जो वाक्य दिया गया है, द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स जो वेल्थ मीन्स धन होता है ना, वेल्थ मीन्स धन होता है, तो इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी, सूचनाएं जो आजकल हमें एक उंगली के टच कर देने से ही, जैसे ही हमें सूचनाओं का या जानकारियों का जो खजाना मिलता है, सूचनाएं जो हमें अचानक से मिल जाती है, वो हम मुझे क्या कर रही है? अमेजेस में यानी आश्चर्यचकित कर रही है। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? द सेंटेंस मीन्स यहाँ पर ये वाक्य किसने कहा था? हु सेड दिस सेंटेंस? दिस सेंटेंस वाज सेड बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम. Yes, have you remembered? Yes. The sentence means that Dr. Kalam is astonished at the abundance of information that is available just for clicking a few buttons of the computer on the computer. The sentence means that on the computer, technology has advanced to such an extent that that all information is close at hand. Okay, what the answer is? You can see on the board. The sentence means that the Dr. कलाम इज एस्ट्रोनिस्ट मीन्स इस वाक्य का मतलब ये है कि जो डॉक्टर कलाम है, अब्दुल कलाम जिन्होंने ये वाक्य कहा था, वो आश्चर्यचकित है. क्यों आश्चर्यचकित है? क्योंकि आज हमें हर एक जानकारी केवल कंप्यूटर के कुछ बटन्स को क्लिक कर देने से ही मिल जाती है. मिलती है नहीं मिलती, चाहे कहीं किसी भी जगह की हो, चाहे कितनी ही जानकारियाँ क्यों ना हो, हमें बड़ी आसानी से कंप्यूटर से केवल कुछ बटन्स को प्रेस कर देने से, क्लिक कर देने से क्या होता है? हमारे सामने वो इंफॉर्मेशन आ जाती है. टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड. आज जो टेक्नोलॉजी जो है, जो उद्योगता जो बढ़ रही है, मीन टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, वो इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि जो इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं, जो जानकारियाँ जो होती है, वो हमारे बहुत ही करीब होती है. Okay students, now let's learn question number 2. Who influenced Dr. Kalam in his early life and why did Dr. Kalam respect him so much? Who influenced Dr. Kalam in his early life? Means Dr. Abdul Kalam को कौन प्रोत्साहित करता था जब वो छोटे थे, जब वो 8 साल के थे, और क्यों वो उनको why did डॉक्टर कलाम रेस्पेक्ट हिम सो मच? क्यों वो उनको इतना आदर देते थे? कौन थे वो? शमशुद्दीन. क्या करते? शमशुद्दीन ही तो उन्हें प्रोत्साहित करते थे हर चीज़ के लिए कि कैसे क्या करना है, किस चीज़ की कितनी लिमिटेशंस होती है, सब कुछ डॉक्टर अब्दुल कलाम उन्हें समझाते थे. सो आंसर इज डॉक्टर कलाम्स कजिन शमशुद्दीन इन्फ्लुएंस्ड हिम अ लॉट in his early life. Dr. Kalam's cousin Shamsuddin. Who influenced Dr. Kalam? Cousin Shamsuddin influenced Dr. Abdul Kalam lot in his early life. Dr. Kalam respected him because Shamsuddin showed a lot of affection for him and encouraged him in many ways. So Shamsuddin was not well travelled or highly educated, but he guided Abdul Kalam and understood his deepest thoughts and feelings before it was uttered.
he was a person who could reach out beyond the narrow confines of daily lives and see the larger world. Yes students, now what the answer means. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जैसे कि पूछा जा रहा है कि उनकी अर्ली लाइफ में, डॉक्टर अब्दुल कलाम की अर्ली लाइफ में कौन उनको प्रोत्साहित करता था, कैसे, क्या, वो क्यों उनकी वो रेस्पेक्ट करते थे, क्यों वो उनका आदर करते थे, है ना, ये क्वेश्चन है. सो डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो कजिन थे शमशुद्दीन, वो इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे. जब वो छोटे थे उनको हर एक चीज़, हर एक बातों के बारे में उन्हें बहुत अच्छे से समझाते थे. डॉक्टर अब्दुल कलाम इनको इसलिए रेस्पेक्ट देते थे क्योंकि शमशुद्दीन जो है वो हमेशा बहुत ही मतलब उनको लॉट ऑफ अफेक्शन मीन्स वो हमेशा उनको क्या करते, उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े रहते, वो उनको प्रोत्साहित करते हर एक तरीके से, बहुत अलग अलग प्रकार के तरीक़ों से वो उनको प्रोत्साहित करते थे. शमशुद्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उन्होंने ज़्यादा दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी अब्दुल कलाम को वो इस तरीके से समझाते थे और इस तरीके से वो उनकी सोच को और उनके अनुभव को समझते थे कि उनकी फीलिंग्स जो थी, उनकी जो सोच थी, जो भी वो अनुभव करते थे, जो भी चीज़ें होती थी उनके मन में भी होती, तो उनके कहने से पहले ही वो समझ जाते थे. ही वॉज अ पर्सन, यही एक वैसे व्यक्ति थे जो उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके हर एक फैसले में, हर एक चीज़ में उनका साथ देते थे, और इन्होंने ही इनकी मदद की थी जो डेली लाइफ में यानी दिनचर्या में क्या कैसे करते हैं, क्या कैसे उन्हें करना चाहिए, सब कुछ उनको समझाया करते थे. और उन्होंने ही इनको समझाया था कि कैसे एक पूरे संसार को, ब्रह्मांड को हमें देखना चाहिए, परखना चाहिए, समझना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड वर्ल्ड वॉर सेकेंड अफेक्ट द न्यूज़पेपर डिलीवरी बिजनेस इन रामेश्वरम. मीन्स यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो विश्व का सबसे जो दूसरा युद्ध था, महायुद्ध था, उसमें न्यूज़पेपर की जो डिलीवरी का जो बिजनेस था उस पर कैसे प्रभाव पड़ा, जो रामेश्वरम में हो रहा था. जो शमशुद्दीन जलालुद्दीन जी की जो एजेंसी थी, शमशुद्दीन जलालुद्दीन जो थे, जिनकी एक न्यूज़पेपर एजेंसी थी जो डिलीवरी करते थे, उन पर कैसे प्रभाव पड़ा. तो अब हम देखते हैं आंसर क्या है. You can see on the board. With World War II, the rail stop at Rameshwaram was done away with. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या हुआ, जो रेल जो थी वहाँ पर रामेश्वरम पर एक रेल रुकती थी, यानी एक जो ट्रेन होती है वो रुक जाया करती थी. Has the town people who read the newspaper would be affected. जो ट्रेन जो उस रास्ते से गुजरकर जाने वाली थी वहाँ पर क्या जो जा रही थी, अब क्या हो रहा था कि न्यूज़पेपर एजेंसी पर प्रभाव पड़ने की वजह से अब क्या हो रहा था, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे उन पर प्रभाव पड़ने लगा. अब क्या होगा, शमशुद्दीन केम अप विद द आइडिया ऑफ मेकिंग लार्ज न्यूज़पेपर्स bundles as the train passed through the रामेश्वरम स्टेशन. अब शमशुद्दीन ने मीन्स जो शमशुद्दीन थे, जलालुद्दीन शमशुद्दीन थे, उन्होंने एक उपाय बनाया. क्या उपाय बनाया कि जो ट्रेन रामेश्वरम पर रुकती थी वो अब नहीं रुकेगी. तो क्या हुआ, जो वहाँ से दूसरी ट्रेन गुजरते हुए जाएगी उससे एक बड़ा सा बंडल बांधकर चलती हुई ट्रेन में से ही रामेश्वरम स्टेशन पर उसे क्या कर दिया जाए, फ्लंग मीन्स फ्लाई कर दिया जाए. Passed through the Rameshwaram station. Shamshuddin person would fling out the large bundles on the platform. Someone would catch the bundles and take them around town for distribution. तो मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जो ट्रेन रामेश्वरम से गुजरते हुए आगे बढ़ने वाली थी, जो वहाँ पर नहीं रुकने वाली थी, उसमें से क्या करना था, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता शमशुद्दीन का जो थे एपीजे अब्दुल कलाम. लेकिन यहाँ पे अभी तक उन्होंने केवल एक आइडिया बनाया था, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कौन रहेगा. तो चलती हुई ट्रेन में से जब वो न्यूज़पेपर का बंडल बाहर फेंका जाएगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहे ताकि उस न्यूज़पेपर के बंडल को वो पकड़ सके और पूरे गांव में मीन्स कस्बे में रामेश्वरम में उस न्यूज़पेपर्स को वो बड़ी आसानी से बांट सके. ओके, हैव यू अंडरस्टूड what is the answer of question 3 students? Now let's see question number 4. Okay, what was Abdul Kalam's routine when he helped his cousin to deliver newspaper during World War II? शमशुद्दीन अब्दुल कलाम का जो मीन्स what was अब्दुल कलाम्स रूटीन मीन्स अब्दुल कलाम का जो दिनचर्या था वो कैसे मतलब when he helped his cousin, जब अब्दुल कलाम ने अपने कजिन शमशुद्दीन की मदद की, कैसे न्यूज़पेपर डिलीवरी में. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेन रुकने वाली थी, वो रुकना उसका बंद कर दिया गया, वो डायरेक्ट
दूसरे स्टेशन पर ही जाती थी, वो वहाँ पर नहीं रुकती थी। तो उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ा वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था तब क्या ऐसा प्रभाव हुआ। Shamsuddin offered an 8-year-old Abdul Kalam the job of catching the bundles of paper which was flung out of the passing train onto the platforms. शमशुद्दीन ने अब क्या जो उपाय बनाया था वो आकर किसके सामने रखा, 8 साल के एक छोटे बच्चे के सामने रखा। वो कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें ये जॉब दिया गया, यानी ये कार्य दिया गया कि चलती हुई ट्रेन में से जब उस बंडल को फेंका जाएगा उसे उन्हें क्या करना है, कैच करना यानी पकड़ना है। अब्दुल कलाम हैड टू अकोमोडेट हिज वर्क विथ हिज नॉर्मल रूटीन ऑफ स्टडीज एंड स्कूल। अब्दुल कलाम को क्या करना था, अपने दिनचर्या का जो स्कूल जाने का, पढ़ाई का जो भी गृह कार्य था, जो कुछ भी उनका था, उसके साथ ही इस काम को भी उन्हें करना था। At dawn after the bath he had to go for his mathematics studies. There he studied for an hour and then his father took him to the Arabic school to learn the Quran Sharif. अब जैसे कि उनका दिनचर्या का जो वर्क था, मीन्स जैसे सूर्य उगने से पहले यानी 4 बजे के लगभग से वो क्या करते थे, उठते, नहाते धोते और उसके बाद वो क्या करते, 1 घंटे की क्लास लेने वो अपने मैथमेटिक्स टीचर्स के पास जाते और वहाँ से वो मैथमेटिक्स के 1 घंटे बाद यानी 5 बजे वो वहाँ से निकलते, जहाँ पर उनके पिताजी वहीं पर आकर उन्हें लेकर कुरान शरीफ जो अरेबिक स्कूल है वहाँ पर ले जाकर अरेबिक स्कूल में छोड़ते ताकि वो वहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ना सीख सके। आफ्टर हिज लेसन After his lesson, Kalam then went to the station where he would wait for the train. After his lesson, जैसे ही उन्होंने कुरान शरीफ का जो पाठ पढ़ लिया उसके बाद वो क्या करते, वहाँ से वो स्टेशन की ओर निकल पड़ते जहाँ पर उनके लिए ट्रेन इंतज़ार करती, यानी मतलब वो ट्रेन वहाँ पर इंतज़ार तो नहीं करेगी, वो गुजरते हुए वहाँ से निकल जाएगी। तो उन्हें क्या करना, पहले जाकर वहाँ पर खड़ा होना था, किस लिए, फॉर द न्यूज़पेपर बंडल्स विच वुड बी थ्रोन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म पर फेंका जाएगा। अब्दुल कलाम वुड देन डिवाइड द पेपर्स इनटू द बैचेस अकॉर्डिंग टू द नाइबरहुड। अब अब्दुल कलाम क्या करते, जैसे ही वो बंडल्स मिलते वो उन बंडल्स को भागों में बांटकर पड़ोसियों में, मतलब जो नाइबरहुड होते हैं उनके अनुसार उनको अलग अलग हिस्सों में बांटते और फिर वो अपने पास रख लेते। For an hour he would deliver the papers, then by 8 AM he would return home to prepare for school. मतलब लगभग 1 घंटे तक वो क्या करते हैं, उन पेपर्स को, मतलब जो पेपर्स उनके पास होते, न्यूज़पेपर्स होते, उन्हें वो 1 घंटे लगभग उन्हें बांटने में 1 घंटा लग जाता था। फिर वो वहाँ से फिक्स 8 बजे अपने घर वापस लौटते जहाँ पर वो आकर अपने स्कूल के लिए तैयार होते थे। And he would sit with his cousin in the evening. वहाँ पर फिर वो क्या करते, वहाँ से वो स्कूल चले जाते इन द इवनिंग, मतलब शाम को वो क्या करते, वो आते अपने कजिन शमशुद्दीन के साथ वहाँ पर बैठते, उनके साथ कुछ उनके फ्रेंड्स भी होते थे जहाँ पर वो बैठकर मतलब सारे दिन भर का जो कार्य होता था सारा हिसाब वगैरह देकर फिर वो वहीं पर न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाया करते थे और वहीं पर वो क्या करते, एंड ऑल्सो देयर वाज अ होमवर्क टू बी डन। उसके बाद वो क्या करते, घर आते, आने के बाद वो अपना गृह कार्य जो स्कूल का वर्क होता था वो कंप्लीट करते थे। एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, सारा वर्क कंप्लीट होने के बाद वो थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेंड्स के पास खेलने जाया करते थे। बाय 9 PM ही वुड बी रेडी फॉर स्लीप, और रात के 9 बजे वो सोने चले जाया करते थे। जैसे कि मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा जा रहा है कि कैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना रूटीन बना कर रखा, हाउ ही मेड द रूटीन। Okay, means when the Shamsuddin came in front of came with an idea, he placed the idea in front of an APJ Abdul Kalam. He said yes for that work. Then what he did, he means what was the work that he has to move for the station and he has to collect the bundles and he has to deliver the newspapers to the town, to the people in the town. Okay, and he has to be accommodate his studies and even his डेली वर्क ऑल्सो। उसने क्या करना था, अपना जो दिनचर्या का जो काम था और साथ साथ उनकी जो पढ़ाई और स्कूल थी उसको भी उनको साथ साथ लेके चलना था। लीविंग दिस at before means at that one what he where he went for the tuitions for the mathematics, and after from there he went in the Arabic school for to learn the lessons of Quran Sharif. From there he came back to the platform to collect the bundles and then he delivered the whole bundles within an hour, and then he moved back to his home, and then what he did, there he prepared for school and he moves for a school. After in the evening what he did, he came back
to Shamsuddin, his cousin's house, means wherever they were sitting near the sea, they came there, and there he gave whatever collection he has collected, he gave back to him, and they read the whole newspaper in the evening. After that, he after all this work, APJ Abdul Kalam was doing his school homework, and then he was playing with his friends. Even he did this work also, and at the last 8-9 p.m. he went to his bed. Okay students, I hope you have understood what I have explained to you in the question number 1, 2, 3 and 4. What you have to do, you have to learn and write this 4. You may think that ma'am it's too large. No students, if you will read the question properly, understood the answer properly, read the answer properly, you can write by your own also. Okay, but now what you have to do, you have to write the whole 4 question answers in your fair notebook with a neat and fair handwriting. Okay. Yes students, now let's try 4. See here they have given you, read the questions and give your views. On the board you can see they have given the let's try 4 means we have to read the questions and we have to write our views. Write the answers in your notebook. What you have to do, you have to write the answer in your notebook. See the question number 1, what the question number 1 says is, after reading the story of an 8-year-old Abdul Kalam, can you compare your childhood to his? जैसे ही आपने 8 साल की जो एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी आपने पढ़ी, क्या आप अपने चाइल्डहुड यानी बचपन की तुलना एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन से तुलना कर सकते हैं? हाउ इज योर्स डिफरेंट फ्रॉम डॉक्टर कलाम चाइल्डहुड? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कैसे डॉक्टर कलाम का बचपन आपके बचपन से डिफरेंट है. डू यू थिंक दैट यू वुड हैव बीन एबल टू डू व्हाट अब्दुल कलाम डिड एज अ चाइल्ड? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप अब्दुल कलाम की जगह पर अगर आप होते, या फिर अभी आप हो 8 साल के, मीन्स आप तो 7th क्लास में, आप 8 साल के नहीं हो, आप एक्स्ट्रा एज जो, तो अभी मैं जैसे कि आपसे ये पूछूं जब आप 8 साल के थे तो क्या आपको लगता है कि जो अब्दुल कलाम ने किया था वो हम भी कर सकते हैं? एक बार सोच के देखो बच्चों, नहीं कर सकते आप लोग, है ना. तो आपको क्या करना है, केवल अपने बचपन को अब्दुल कलाम के बचपन के साथ क्या करके देखना है, तुलना करके देखना है कि क्या अब्दुल कलाम ने किया था. अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. फिर ना था बच्चों, आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में तुलना करके देखना है. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन 2 ऑन द बोर्ड. Which words came into your mind when you think of Abdul Kalam as an 8-year-old child as described in the text? Fill in the web chart. Now we can see they have given the web chart in the question number 2. What you have to do when we are thinking about the child, about a child of 8 years old, a child described in the text. मीन्स टेक्स्ट बुक में जो ये कहानी सुनाई जा रही है, इसमें अब्दुल कलाम के बारे में कुछ ऐसे शब्द वर्णन करके बताए जा रहे हैं जब वो 8 साल की थी. तो हमें क्या करना है, उन्हें इस वेब चार्ट में भरना है. So let's see now the web chart. In the between you can see they have written 8-year-old अब्दुल कलाम, जब वो 8 साल के थे. So पहले में हम लिखेंगे इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान थे. Okay, he was a very intelligent. Then in the second box we can write he was very hard working. Yes, वो मेहनती थे, वो रेस्पॉन्सिबल भी थे, वो जिम्मेदार भी थे. नेक्स्ट केयरिंग, हर एक मीन्स हर एक व्यक्ति की वो चिंता भी करते थे, सोचते भी थे. नेक्स्ट इज इमोशनल. आफ्टर दैट ईगर टू लर्न एंड नो, वो हर चीज़ को सीखना और समझना चाहते थे. फिर है रेस्पेक्टफुल, मीन्स वो हर एक व्यक्ति की इज्जत भी करते और किसी को मतलब दूसरों का भी वो आदर करते थे. नेक्स्ट इज डेडिकेटेड. व्हाट? डेडिकेटेड. ओके स्टूडेंट्स, what you have to do, you have to fill this whole thing in your web chart. This web chart you have to prepare in your fair notebook. Okay students, only question number 2 you have to do in your fair notebook. Okay, have a nice day.